Plan today. It's basically management lessons from Shairi. So let me set the context. First of all, I am not a professional shayer by any stretch of imagination. I am not a full time. I don't. अरे तुम म्यूट तुझसे बाहर आ गया नहीं मैं डरा नहीं रहा हूँ मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ सो बिकॉज देर आर मेनी फ्रेंड्स लाइक आई कैन सी सौरभ कुलक्षेत्र ही इज अ शायर प्रोफेशनल शायर. Okay, so he's a terrific guy, so please don't compare me with him and many other such people who might be on this session today. So I just a little demonstration that as an entertainer, that's what I call myself. My name is Hariharan Iyer, the entertainer. As an entertainer, you look for different mediums to make your sessions very interesting. So Shairi is one of the beautiful tools that you can use along with dramatics. You can use music, but Shairi is one of the beautiful tools that you can use. So today I'm just going to take you through a little journey of what we can learn from different Shairis. And there are such amazing Shairis that we all come across, and they have a natural pull factor, right? So Indian subcontinent, especially of course India and Pakistan, a very rich tradition of हिंदी कविता एंड उर्दू शायरी. एंड आप देखेंगे कि हिंदी और उर्दू एक तरीके से मिक्स हो जाते हैं. हम हिंदी में उर्दू बोलते हैं और उर्दू में हिंदी बोलते हैं. तो हिंदी में हम उर्दू के शब्द इस्तेमाल करते हैं और उर्दू में हम हिंदी के शब्द इस्तेमाल करते हैं. सो बहुत सारे बड़े शायर आए हैं दोनों कंट्रीज से. फॉर एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तान वी हैव हैड of course the most famous of course is Ghalib. Everybody likes to quote Ghalib, even if Ghalib has not said that, we still like to claim that it is said by Ghalib sometimes, so that is how popular he is. So of course there is Ghalib, but there are a couple of great shayars who emerged in Pakistan. Faiz Ahmad Faiz and also John Elia. The two legends in the field of shairi, both from India and Pakistan. They follow them very strongly. And of course from India we have a very very rich tradition of great shayars. For example, Sahir Ludhianvi, we have Rahat Indori Saab, we have Munawar Rana, Kafi Azmi, Javed Akhtar, Gulzar Saab. Now Gulzar Saab, now many people think that Urdu is connected to Islam or it is connected to the Muslim community. And Hindi belongs to the Hindu community. It is not like that at all actually. So because it's just a language, so language has no religion. शब्दों का और भाषा का कोई मजहब नहीं होता है. एंड गुलजार साहब फॉर एग्जांपल इज एन एक्सपर्ट इन उर्दू शायरी, बट ही इज अ पंजाबी. And he can do great kavita in Hindi, and he can also do great shairi in Urdu. And so we have such amazing names in our Indian tradition, and we can learn a lot. Now one of the things, for example, I want to give an example of a shair called as Baba Nagarjun. वो सियासत के खिलाफ लिखते थे. So many of these shayars, they have come through the Indian progressive writers movement also, and progressive movement in other ways also. So they are people who have not only indulged in this for their talent or for their happiness or their satisfaction, but also to raise a voice against political issues, community issues. So it takes a lot of courage to do very meaningful shairi. It is not just a playing to the gallery act. It has a lot of meaning, right? So I want to begin the session by reciting a shairi by the great Rahat Indori. Now one of the things, if you go to YouTube and watch Rahat Indori Saab say the shairi, you'll feel that he's actually a dramatic guy, like as if he's acting in a theater. He can be a great trainer himself because the way he recites the shairi, the style is really amazing. And Rahat Indori Saab says, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं. हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं. मोहब्बत के इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं. मोहब्बत के इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं. तो भावेश वाह वाह बोल दे यार. Yeah. Okay. So what does it mean? It's a patriotic couplet from the great Rahat Indori. And so the first lesson that we get from all this is that let's love our country, guys. Let's love our country because our country is so beautiful. और हम इसको भारत माँ भी कहते हैं. तो और हमारी माँ भी बहुत स्पेशल है, भारत माँ भी बहुत स्पेशल है. एक बहुत बड़े और शायर है जो कंटेम्प्रेरी है राहत इंदौरी साहब का, वो है मुनव्वर राणा साहब.
And Munawar Rana, I mean, again, it's a delight to listen to these people. You know, they not only write well, they also speak so well. Their communication skills is so amazing. And Munawar Rana has written a very beautiful set of shairis on Ma. And I think it's worth listening to on YouTube. You can watch him recite it, you can listen to him. It's amazing. I've just taken couple of lines, and he says, लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती. एंड इट्स यार, इतना रूटीन में मत बोल, दिल से बोल. ओके, so what do we learn from this is that we must love our parents. We should obviously love our mother, and mothers are always loved more than fathers. And sorry Bhavesh, fathers don't get as much love as mothers. कुमार विश्वास साहब का मैं वो दिन एक वीडियो देख रहा था, और वो मुनव्वर राणा साहब का इस माँ का शायरी के बारे में जिक्र कर रहे थे. तो उनसे किसी ने पूछा, अच्छा ठीक है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, तो बाप के पैरों के नीचे क्या होती है? तो कुमार विश्वास साहब ने कहा, बाप के पैरों के नीचे जूते होते हैं. जूते लेके मारते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली कोई बाप के ऊपर कोई शायरी नहीं लिखता. ये तो लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती. इसी से रिलेटेड एक शायरी है जो बेटियों के बारे में. अगेन भावेश कोई बेटा के बारे में नहीं लिखता. शैलेश लोढ़ा साहब, जो वेरी फेमसली नोन एज तारक मेहता, इन तारक मेहता को उल्टा चश्मा, ही हैज रिटन अ वेरी ब्यूटिफुल कविता ऑन बेटी. I am also the father of a daughter. Many of us may be fathers of and parents of daughters. एंड बहुत एक लंबा सा उन्होंने कविता लिखा है. मैंने बस 2 लाइनें ली है उसमें से. दैट हाउ व्हाई डॉटर्स आर स्पेशल. एंड ही सेज दैट ये नहीं कहूँगा कि वो मेरे ये नहीं कहूँगा कि वो हर वक्त साथ साथ होती है, बेटियां तो सिर्फ एक एहसास होती है. ये नहीं कहूँगा कि वो हर वक्त साथ साथ होती है, बेटियां तो सिर्फ एक एहसास होती है. वो फोन रिंगटोन वाज अ सैल्यूटेशन फॉर मी, आई थिंक. ओके, सो thank you Niharika. So basically, you look at the words of these people, and you know what is amazing about these people is the thought process. मतलब वो कितना गहरा सोचते हैं और कैसा सोचते हैं. जैसे गुलजार साहब, मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है. उनका एक गीत है पिक्चर मासूम में, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं. तो उसमें 2 लाइनें हैं कि मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उठाने होंगे. राइट, जिंदगी में सोचा ना था कि मुस्कुराए तो मुस्कुरा, आई मीन दीज आर, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट लाइंस राइट नाउ. मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उठाने होंगे. सो ही सेज हंसने का भी एक कीमत होता है. तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ प्राइस. So all of you are here, so you have paid some price to be here. I am doing this session, so I have paid some price to be doing this session. So हर चीज में, हर रिश्ते में, हर मौके पर, हर वक्त में, हमारा जिंदगी में हर क्षण में हम कुछ ना कुछ कीमत चुकाते हैं. तो किसी से हमने बोल दिया आई लव यू, तो शादी हो गई है, ये बड़ा कीमत चुकाया हमने, बराबर. तो हम हर वक्त कुछ ना कुछ कीमत चुकाते रहते हैं. तो इनका जो डेप्थ है सोचने का और बात को व्यक्त करने का, बहुत ही अमेजिंग है. गुलजार साहब इतने बढ़िया गीत लिखते हैं, इतनी बढ़िया शायरी बोलते हैं, और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो जिस तरीके से बोलते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ सर्टन लैंग्वेज. I am a great fan of Gulzar Saab, and also the films that he makes, and the lyrics that he writes, and the direction that he does. It's just an amazing gentleman. So one of my favorite shairi which I use in all my training programs. I don't know who has written this, but I love to say this because it says that we should always be happy in life. It says that जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है. जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है. जिंदगी को जियो इस अंदाज में, जिंदगी को जियो इस अंदाज में कि लोग आपको देखकर कहे कि वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत है.
सो एक एक जो सीख हमको मिलती है इसमें से कि एक तो हंसते रहो और मुस्कुराने में कोई मतलब कोई, हाँ, गुलजार साहब बोलते हैं मुस्कुराओगे तभी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे तो भारतीय लिफ्ट में चढ़ते हैं तो एक दूसरे को देख के शक की नज़र से देखते हैं कि ये शायद मद्रासी है, शायद पंजाबी है, ये शायद कर्नाटका का है, ये कहाँ का है। लेकिन जैसे ही एक फॉरेनर उस लिफ्ट में घुसता है वो दोनों को देख के गुड मॉर्निंग बोलता था, हम दोनों उसको गुड मॉर्निंग बोलते, एक दूसरे को नहीं बोलते। और और इंडिया में प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे को देख के हंसेंगे तो पूछेगा तेरे को, तू मेरे को देख के क्यों हंसा, कुछ काम है तेरे को मेरे से। यू नो, सो दिस टीचर्स अस दैट हाउ टू बी ऑलवेज, how to be always happy in life, and and also be a role model, and what are children looking at when they look at parents? They are looking at कि ये हमारे रोल मॉडल बन सकते हैं कि नहीं। जैसे मैंने किसी को सुना था, उन्होंने बोला कि अगर आप अभिषेक बच्चन से पूछोगे कि तुम किसके जैसा बनना चाहता है, तो वो ऑब्वियसली कहेगा मैं मेरा बाप अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता हूँ। हमारे बच्चों से पूछोगे किसके जैसा बनना चाहता है, वो भी अमिताभ बच्चन का नाम लेता है, तुम्हारा नाम नहीं लेता है। so, वो बोलता है मैं सलमान खान जैसा बनना चाहता हूँ, मैं ऐश्वर्या राय जैसा बनना चाहती हूँ, बेटी बोलेगा मैं आमिर खान जैसा बनना, शाहरुख खान बनना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता, लाइफ में कुछ भी बनूंगा, तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। आई थिंक सो वी हैव अ पेरेंटिंग चैलेंज देयर गाइस, सो आवर चिल्ड्रन शुड बी इंस्पायर्ड बाय अस। So far we have covered love your country, love your mother, love your daughter, love your children, of course, love your parents, always be happy. Now I'm come to a very beautiful a few lines by, I can see Vihan there. Bhave, say hi to him. Yeah. Okay, such a cute boy. I want to recite a few lines by Faiz Ahmad Faiz साहब। और वो कितनी खूबसूरत बात कहते हैं जिसमें से हमको सीखने को मिलता है कि मंडे इज ए ग्रेट डे इन आवर लाइफ, थैंक गॉड इट्स अ मंडे, नॉट नॉट ओ गॉड इट्स अ मंडे। फैज अहमद फैज बोलते हैं वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। ये बहुत, हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। आगे के भी एक दो लाइन है लेकिन मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि फिर वो इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है। हर शायरी का मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, जरूरी नहीं है कि शायर ने उसी तरीके से सोचा था जैसे मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक चीज सीखा है लाइफ में कि अगर आप अपने काम से मोहब्बत करेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में दुख नहीं होगा, आपको कभी भी बड़ा मजा आएगा। हम ये सारे फ्री सेशंस कर रहे हैं, किसी को कुछ पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन वो काम करने में बड़ा मजा आ रहा है, राइट। सो काम करने में मजा आना चाहिए। अगर आप अपने काम से मोहब्बत करेंगे तो आप लाइफ में कभी दुखी नहीं हो सकते। और आप जब काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, जब लोगों से प्यार करेंगे तो पैसा खर्चा होगा। सो लोगों से थोड़ा कम प्यार करना है और अपने काम से थोड़ा ज्यादा प्यार करना है। तो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़े शायर हमारे देश में पैदा हुए, उनका नाम है साहिर लुधियानवी। और ये बहुत सारे जो शायर थे जैसे मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी या कैफी आजमी, ये खुद बड़े शायर थे और बहुत बड़े गीतकार भी थे, तो हिंदी फिल्मों में गीत भी लिखते थे। तो गीतों और शायरी में फ़र्क क्या होता है कि गीतों को आपको सिचुएशन के हिसाब से लिखना पड़ता है, शायरी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपके ज़िंदगी के सिचुएशन के हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। सो तो लेकिन साहिर लुधियान, लेकिन क्योंकि इनकी खासियत शायरी में थी, इनका बेस शायरी था, तो कहीं ना कहीं इनका निजी ज़िंदगी, इनका निजी फिलॉसफी, ये भी कहीं ना कहीं गीतों में रिफ्लेक्ट करता था। तो जैसे मूवी निकली थी यश चोपड़ा की कभी कभी, और बहुत एक फेमस गाना हुआ था, मुकेश साहब ने गाया था, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। तो मैं कुछ पंक्तियां उसमें से पढ़ूंगा और उसमें से हम अपना अपना मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। अब मुझसे पहले कितने शायर आए और चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। तो इससे हमको सीखने को मिलता है कि अपने आप को इतना सीरियसली मत लो। हम सब जाने वाले हैं, और खुद को इतना बड़ा मत समझो कि तुमसे बेहतर कोई नहीं आएगा।
और हमसे भी बेहतर बोलने वाला ट्रेनर आएगा और हमसे भी बेहतर सुनने वाला श्रोता आएगा। ये साहिर लुधियानवी हमको समझा रहे हैं और इतनी खूबसूरती से समझा रहे हैं कि कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूं बस। तो आज में जो लिव इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट, live in the moment. Don't think too much ahead. This lockdown has taught us that don't think too much ahead of yourself. Learn to take things as they come, take things day by day, right? So साहिर लुधियानवी के बहुत नगमे हैं, बहुत सारे कविताएं हैं, बहुत सारी शायरी है। A legend in Indian film industry, in the tradition of Indian शायरी, and one of the greats. We always celebrate the great singers like Mohammad Rafi Saab, Kishore Kumar, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle. But they all derived that power because of the power of the words that people like Kafi Azmi Saab, या जावेद अख्तर, और या फिर साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, ये शकील बदावनी। एक बहुत खूबसूरत गाना है, मधुबन में राधिका नाचे रे। ये इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है इसमें। इसका एक्टर है दिलीप कुमार इस गाने में। इसको गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, इसको म्यूज़िक दिया है नौशाद साहब ने, और इसका लिरिक्स लिखा है शकील बदायूनी ने। और ये सारे मुसलमान हैं, बाय रिलीजन दे आर ऑल मुस्लिम्स, एंड दे रोट ए हिंदू डिवोशनल सॉन्ग। सो बॉलीवुड टीचर्स अस दैट देयर इज नो रिलीजन. So many so-called Hindu singers have sang great Muslim numbers. Great so-called Muslim singers have sang great Hindu numbers. So this teaches us communal harmony, nationalism. So these people are so very special. So friends, I want to go to the last part of this and then open the floor for questions. और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ कुछ लिखने की हिंदी में, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और ये हमारे लॉकडाउन के ऊपर है। थैंक यू। ये हमारे लॉकडाउन के ऊपर है। और थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है इसमें स्त्रीलिंग पुलिंग ग्रामर इसका ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे थोड़ा माफ़ कर देना कि मैंने कोशिश की है। और इसका शीर्षक है, हाँ ये तसल्ली है कि मैं अकेला परेशान नहीं हूँ। हाँ ये तसल्ली है कि मैं अकेला परेशान नहीं हूँ। ये भी परेशान है, वो भी परेशान है, हम सब परेशान है। अच्छा है किसी मोड़ पर तो कोई साथ मिला, आज तक मैं साथी ही तो ढूंढ रहा था। सोचता था वो साथी मेरे काम में मेरा साथ देगा और मैं उसके काम में उसका साथ दूंगा। पर यह कैसा साथ है जहां पर ना तुम्हारे पास काम है ना मेरे पास काम है। हाँ ये तसल्ली है कि आज मैं अकेला परेशान नहीं हूं। ये भी परेशान है, वो भी परेशान है, हम सभी परेशान हैं। सो आखिर में मेरा और एक फेवरेट शायरी है जो मैं अपने ट्रेनिंग में यूज़ करता हूँ, मैं उसके साथ ख़त्म करूँगा। देन वील ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। So but before that, let me quickly summarize what we have learned. That love your country, always be happy, love your children, love your work, love your parents, live in the moment, don't take yourself very seriously, and let's learn from the lockdown. My few lines were about how you can learn from the lockdown. So I will, so if you want to read the full thing that I've written, please go to bolharrybol.blogspot.com and you can read it, or I will share it with all of you later. So friends, एक आखिर में एक शायरी के साथ खत्म करूंगा कि हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास नहीं करना, हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, एंड वी कैन ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस।